अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि जाने जाते हैं डेस्टिनी मॉडिफायर के रूप में, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब से जुड़े हैं। और मैं हूं आपके इस शो की होस्ट कृष्णिका निधि कंसल अग्रवाल। बात कर रहे हैं हम पिछले कुछ समय से लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आएगी, जब किस्मत में ही हैप्पीनेस लिखी ना हो, किस्मत में हमारी इच्छा पूरी होगी ये हो ही ना, तो कैसे ये हम अटेन करें, प्राप्त करें, ये हमें सिखा रहे हैं या ये पॉसिबल करके दिखा रहे हैं डेस्टिनी मॉडिफायर अश्विनी जी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, नेचुरल कैलामिटी। हमने बहुत मेहनत से एक दुकान बनाई, लेकिन वो दुकान बाढ़ में बह गई। प्राकृतिक आपदाएं या कॉल ऑफ नेचर की वजह से हमारी किस्मत पर जो इफेक्ट पड़ता है, क्या उसको रिवर्ट किया जा सकता है? पहला सवाल अश्विनी जी आज हमारा आपसे यही है कि कॉल ऑफ नेचर, क्या ये हमारी डेस्टिनी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है, या ये अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? नहीं, देखो, दो स्टेटमेंट तुम्हें समझनी पड़ेगी। एक है कॉल ऑफ नेचर और एक है कॉल ऑफ डेस्टिनी। जी। तो कॉल ऑफ डेस्टिनी कैन बी हैंडल्ड, बट कॉल ऑफ नेचर कैनॉट बी। You understand what I'm trying to say? And we are talking of human beings. So we are not talking about natural calamities, because most of the time they are man-made. And man-made natural calamities, it's a conflict between the statement itself. No, natural calamities are natural. That is why we are calling them natural. But man-made also, if man is able to, suppose, I'll give you an example. एक डैम किसी ने डैमेज कर दिया, हाँ, तो उसके वजह से बाढ़ आ गई, तो now what will you call this? This was a man-made calamity, लेकिन That's what. So you don't know whether the calamity is man-made or natural. You cannot define. नहीं, Some experiment was done somewhere, and उसका इफेक्ट कहां पर क्या आएगा वो तो तुम्हें पता लगेगा ही नहीं. You are never able to estimate. You cannot estimate the vibrations. You started creating a nuclear explosion, suppose at a place which is far off from your living beings, suppose. And then what happened was that, because when you are doing nuclear test, that you are digging the earth to a level which is much below. You understand? Much below means maybe 1 kilometer down, maybe 2 kilometers down, maybe 5 kilometers down. okay, Then now you understand, try to understand the difference, that if you take a sphere, you take a ball, and you have a center of the ball somewhere, and imagine that the ball dia is 4 meters. okay, Let us say the ball dia is 4 meters. हाँ जी, And we have digged 2 meters down. okay, Okay? So we have left with the sphere size of only 2 meters. yes, And there we are doing the blast. yes, And our consideration is on the surface. yeah. So what do you think? What will be the effect? Where will the effect go? The effect will transcend from everywhere. उसका इफेक्ट, उस ब्लास्ट का इफेक्ट जो 2 मीटर नीचे किया है, पूरे बॉल का डाया आप 4 मीटर बता रहे हैं, तो वो जो बाकी का जो नीचे का हिस्सा है उसमें भी उसका इफेक्ट जाएगा. नीचे का हिस्से में तो जाएगा ही जाएगा. But if we are talking only of surface, let us say, we are not going down. जी, तो we surface की बात करें तो we had done calculations on the top surface. हाँ जी, Whereas blast you are doing 2 meters down, half the surface down, हाँ जी. and that surface you never considered. What will be the effect of nuclear explosion at that surface? Try to understand. तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज आज की डेट में हम देखते हैं, दे आर मोस्टली मैन मेड, या हमारी ही कुछ एक्टिविटीज की वजह से वो नेचुरल कैलेमिटी आती है? We are trying to find an escape route. We are not wanting to get blamed.
and we are not interested in reducing the pollution. We are just playing a blame game everywhere कि उसकी वजह से पोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, जबकि each human being is contributing to pollution. Each human being on planet Earth, each entity on planet Earth is contributing to pollution. Each entity, living or dead, both I am talking about. Yeah, that is very true. लेकिन अश्विनी जी, still there are some call of nature which actually affect our life. तो क्या वो कौन? हाँ, right. कॉल Okay. ऑफ नेचर हमारी डेस्टिनी को इफेक्ट करती है? नहीं. Call of nature is something independent of your destiny. They are two different things. Call of destiny and call of nature are not connected. कॉल ऑफ डेस्टिनी तो ये हो गया कि हमने किस्मत में कमाया हुआ था, ये एक्सीडेंट आना था तो ये एक्सीडेंट आ गया, Okay. ये तो हो गया कॉल ऑफ डेस्टिनी. अगर आपको ऐसा लगता है कि नेचुरल कैलेमिटीज आर ह्यूमन मेड मोस्टली, जाने अनजाने, Right. तो एक्चुअली तो डेस्टिनी इज आल्सो ह्यूमन मेड, जाने या अनजाने. Right. तो कॉल ऑफ नेचर नाम की या नेचुरल कैलेमिटी नाम की तो कोई चीज बची ही नहीं. Again, you are confusing the two. We are talking of call of nature, not calamities. कॉल ऑफ नेचर आपकी नजर में क्या है? हाँ. तो कॉल ऑफ नेचर को समझना पड़ेगा. अगर कॉल ऑफ नेचर को नहीं समझोगे तो फिर तुम पोल्यूशन को कभी you can't get rid of pollution at all from your life, from your earth. Wherever you go, whatever you do, you will only cause pollution. So try to understand the difference between the two, call of nature and destiny. Breathing is call of nature. Eyes to see is call of nature. These natural processes, ये जो natural phenomenon है, breathing हो गया या हम देखते हैं या हमारी senses आसपास कुछ भी गंदा है तो हमें बदबू आएगी, तो these are natural acts, हमारे natural phenomenon है. That is what I am trying to say. कि call of nature is that you are able to see from your eyes. हाँ जी, Suppose a person is that there is a defect in the eyes, he is not able to see. हाँ जी. That is destiny. Yes. So you have understood the two difference in two. मतलब नेचुरल प्रोसेसेस में अगर कुछ अवरोध बन रहा है, कोई नेचुरल प्रोसेस किसी का भी ठीक नहीं है, तो ये उसकी कॉल ऑफ डेस्टिनी. Yes, ठीक है. that's the difference between the two. हाँ जी. जैसे फीमेल हाँ जी. फीमेल के पीरियड स्टार्ट होते हैं, जी. दैट इज ए कॉल ऑफ नेचर. जी. बट वो उसको कितना कष्ट देते हैं, कितना कष्ट नहीं देते हैं, दैट इज डेस्टिनी. हाँ बिल्कुल. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कॉल ऑफ नेचर मोर और लेस सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक जैसी रहेगी. नहीं, इट इज जेंडर बेस्ड, इट इज एंटिटी बेस्ड, इट इज काइंड ऑफ बॉडी बेस्ड. तो ह्यूमन बीइंग्स की तो सिमिलर बॉडी हो गई ना. हाँ, इफ यू आर टॉकिंग ओनली ह्यूमन बीइंग्स तो ओके, कॉल ऑफ नेचर ह्यूमन फीमेल्स के लिए, अगर मैं फीमेल कम्युनिटी की बात करूँ, राइट. ह्यूमन फीमेल्स के लिए मोर और लेस कॉल ऑफ नेचर विल बी सिमिलर. बट नहीं, if she is female, हाँ, then definitely it will be same. It cannot be different. There cannot be any exception to this. जी. ओके. एंड सेम इज विद मेल्स. मुझे आती है. हाँ जी. It is they are bound to come. तो दिस So this is call of nature. इज द कॉल ऑफ नेचर. Yes. तो कॉल ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि आप डेस्टिनी मॉडिफायर हैं, तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो कॉल ऑफ डेस्टिनी है उसको आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो हमारे लिए इतनी पेनफुल ना रहे. Correct. So there are two things. No, you are always actually the problem with the human race today has become is that he or she, that person is always worried about कि खराब ना हो जाए. He is never worried about कि मेरा अच्छा हो रहा था वो और अच्छा हो जाए. जी. अच्छा, जब हमारी डेस्टिनी में ऑलरेडी हो रहा है, जैसे किसी का हमने देखा कि आपका विवाह आपको सुख देने वाला है या आपकी संतान आपको सुख देने वाली है,
तो उसका जब अच्छा है तो वो उसको और अच्छा करने की कोशिश क्यों करेगा? इनफैक्ट उसको लगेगा कि चलो ये तो कम से कम मेरा ठीक है, जो ठीक नहीं है मैं उसको ठीक करूँ. दैट इज व्हाट वी ऑल ट्राई टू. No, actually, that is the problem. If you learn to enhance your happiness, if you learn to enhance your happiness, that automatically will reduce so many factors in you which are disturbing. तो इसका मतलब जब हम डेस्टिनी रीड कर रहे हैं किसी की, तो किसी की पर्सन नेचुरली सब में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस के भी रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ पेन के भी रीजंस Right. होते हैं. तो जो हैप्पीनेस के रीजंस हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनको एनहांस करने की कोशिश की जाए, ना कि पेन के रीजंस को नहीं. रिड्यूस करने की कोशिश की No, जाए. no, no. I said two. There are two factors which you have to take. You must care for. When I'm talking about destiny modifier, then try to understand two type of phenomena in your life. ओके. One is giving happiness, one is giving pain. हाँ जी. Two type. So try to reduce the pain and increase the happiness. That is what I'm trying to say. अच्छा, दोनों एंड्स पे हमें कोशिश करनी है. करनी ही चाहिए. दोनों एंड पे कोशिश करोगे तो योर लाइफ विल बी एवर हैप्पीनेस लाइफ. अश्विनी जी, एक प्रश्न आया है मन में कि जी. डेथ, मृत्यु, हाँ. इसको आप क्या कहते हैं? कॉल ऑफ नेचर या कॉल ऑफ डेस्टिनी? डेथ इज इनएविटेबल. वो श्योर है, पक्की है, तो इट इज ए कॉल ऑफ नेचर. Death is a call of nature. Birth, conceivement is a destiny. But when will you conceive is a call of nature. सेम इज विद डेथ आल्सो, कि किसी की डेथ 50 की एज में आनी है, किसी की डेथ एक्सीडेंट से होनी है, किसी की डेथ 90 की एज में आनी है. तो डेथ आल्सो इज अ कॉल ऑफ डेस्टिनी. वी कैन रीड इट इन डेस्टिनी. Yeah, true. कैसे होगी? I'm not denying it. What I'm saying is, you can modify it. That suppose तुम्हें कॉल ऑफ नेचर कहती है कि तुम्हारे को 70 साल में एक्सीडेंट होकर, कॉल ऑफ डेस्टिनी कहती है कि 70 साल की उम्र में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा जिससे तुम बचोगे नहीं, चांसेस बचने के बहुत कम है. आई थिंक यही कहते हैं डेस्टिनेशन रीडर्स. वो ये तो कहते ही नहीं कि तू निमट जाएगा. नॉर्मली क्लियरली नहीं कहा जाता है. कहा जाता है कि थोड़े सा केयर रखिएगा, आपका एक्सीडेंट होगा, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, और बचने की उम्मीद तो कम रहेगी, लेकिन स्टिल मतलब वी स्टिल लीव अ गैप फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट पर्सन. Why? Do you know why it is done that? क्यों? Because you don't know that he is going to die. You never try to study that accident के बाद उसकी लाइफ क्या कह रही है. देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज जो मैंने देखा है सभी डेस्टिनी रीडर्स के साथ कॉमन है. ग्रेजुअली दे स्टार्ट बिलीविंग इन भगवान और द सुप्रीम. कहते हैं ना कि जब किसी की नहीं चलती तब उसकी चलती है. एक्चुअली चलती उसी की है. ये डेस्टिनी लीडर्स को एक वहम हो जाता है कि उनकी चलती है. प्रॉब्लम इज दैट डेस्टिनी लीडर स्टार्ट्स थिंकिंग दैट जो ये है they are able to change. They are not able to take care of the things. They think that they are able to guide. They like the person who is visiting the doctors. और डॉक्टर ने उसको हेल्प की और वो उसका जो कष्ट था कम हो गया, क्योंकि कष्ट इतना ज्यादा था कि कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था. उसको कहने लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा. तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी और उसको टेक केयर किया, एंड वो जो बच गया तो उसने डॉक्टर को भगवान मान लिया. डॉक्टर वॉज नॉट ए डेस्टिनी रीडर एट ऑल. इवन देन द पर्सन हु अंडरवेंट द ट्रीटमेंट स्टार्टेड कॉलिंग हिम भगवान. So destiny readers are much higher than the doctors. नहीं, destiny readers how can be they higher than the doctor? Because very simple, they are able to diagnose much better compared to doctors. अश्विनी जी, अब जो आप या कोई और पर्सन अपनी किस्मत में लिखवा के लाई है, वो तो लिखा गया है. Correct. होगा ही होगा.
होगा। किसी ने पढ़ के दिया आपको, एक तो आपकी कोई चिट्ठी आई है, आप पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए इमटेरियल, उसमें जो लिखा है वो तो होगा ही होगा। करेक्ट, करेक्ट। तो डेस्टिनी रीडर इज ओनली अ रीडर। That's what I'm trying to say. It is a diagnostics. These destiny readers are actually destiny diagnosters. Try to understand. नहीं, हम ये नहीं बता सकते आपका हेल्थ डिस्टर्ब रहेगा तो क्यों रहेगा। ये मैंने पूछा, डेस्टिनी डायग्नोस्टर जो है वो कभी नहीं कहता कि क्यों रहेगा। डेस्टिनी रीडर हमेशा जो डायग्नोस्टर है वो कहता है ये प्रॉब्लम है और कितनी है, दैट्स इट। डेस्टिनी डायग्नोस्टिक एंड डेस्टिनी रीडर, दे आर सेम। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, मेरे पैर में दर्द है, मैं डायग्नोसिस के लिए किसी लैब में गई और वहाँ मुझे पता लगा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसलिए पैर में दर्द है। तो आई गॉट टू नो द रीजन, सो आई नो दैट हाउ आई कैन रिड्यूस दिस पेन नाउ। So that is what I said. The destiny readers are much more advanced. That there, you have changed the destiny reader. You went to two destiny readers. तुम्हारे पेन में दर्द, पैर में दर्द था, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा टेस्ट करा ले, तो you have gone to two destiny readers, and both of them are different type. That's it. Try to understand what I am saying. Doctor is dependent on the destiny reader, other destiny readers also. Not on self-dependent. He is not a destiny reader. He is a destiny modifier, probably. Yeah. बस the game is that जो पैथोलॉजी लैब वाला स्टडी कर रहा है वो प्रेजेंट को स्टडी कर रहा है, उसको नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है। बट जो डेस्टिनी रीडर रीड कर रहा है, कर रही है, वो प्रेडिक्ट कर पाता है कि फ्यूचर में आपके साथ ये हो सकता है। Exactly. तो फिर बताओ कौन सा बेटर रहा। अगर तुम्हें उस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर तुम्हें डेस्टिनी रीडर से तुम पढ़वा लेते कि इस टाइम पे तुम्हें हेल्थ का कोई कष्ट आने वाला है, और मॉडिफायर के पास जाकर के पता कर लेते कि ऐसे ऐसे मेरे इस टाइम पे ये आने वाला है, तो उसके लिए कोई रेमेडी है क्या, तो द डेस्टिनी मॉडिफायर विल अंडरस्टैंड, ट्राई टू रिलेट इट विद द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड ही विल सजेस्ट यू द प्रोसीजर, एंड इट टेल यू दैट इतना टाइम लगेगा, इस प्रोसीजर को इतने टाइम कर ले तो तेरे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स इट। That's why destiny readers are much more advanced compared to the any healthcare mechanic. Doctors, we call them mechanic actually. Yes. Because they are mechanics. Surgeons, they call themselves carpenters. जो real surgeons हैं, they call themselves carpenters. Why? They are finest carpenters, and they are working on the living body. That is the key. जी। एक शब्द आपने कहा, कॉल ऑफ नेचर। जी। कॉल ऑफ नेचर तो जिसकी आनी है आनी ही है, यानी कि कॉल ऑफ नेचर को हम किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते। नहीं, अब की यहाँ पर यह है कि यू शुड लर्न हाउ टू हैंडल नेचर, ये कॉल ऑफ नेचर। द की इज दैट डेस्टिनी कैन बी मॉडिफाइड, but call of nature cannot be modified. So you have to learn to use it best. कॉल ऑफ नेचर नेचुरल फिनोमिनन्स हैं। Correct. इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं? वन थिंग, उनको लर्न करना है कि उनको कैसे हैंडल करना है, ये क्यों? क्योंकि जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल लो। हाँ जी। कि यू आर गेटिंग मेल्स, जी। उनकी मूछें आ रही है, दिस इज अ कॉल ऑफ नेचर। अब वो उसको कैसे रखना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू क्लीन शेव, दे वॉन्ट टू इंक्रीज दैम, दे वॉन्ट इट टू बी कलर्ड, दे कैन डू एनीथिंग विद दैट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हैंडलिंग एंड यूजिंग। या सो अश्विनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन बींग्स को कॉल ऑफ नेचर के बारे में मोस्टली वी ऑल नो, आई मीन नेचुरल फिनोमिनन्स जो हैं हमें पता ही हैं, और मोर और लेस हमें फैमिली के थ्रू सिखा ही दिया जाता है कॉल ऑफ नेचर को हैंडल करना। नहीं, दिस विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स, इफ आई से, दिस इज कंप्लीटली मिसिंग इन आवर सोसाइटी। पीरियड्स, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज, ये 3 फेजेस ऐसे हैं लाइफ में जिसके बारे में फीमेल्स को कुछ पता ही नहीं है। दैट नारी ज्ञान इज precisely missing from this society. Kuchal Ved is not known to the society, which has
Nari Gyan as a part. That is the problem, that we have so many problems in pregnancy. Till date, we are not able to handle pregnancy of the female well. We are not able to get the child delivered which is healthy, and female remains healthy. One of the two is in the bad shape. Then periods. Show me one female, or show me some females who have been able to have pain-free periods. Tell me, show me females today. There are very few. I would say there are, but very, very few, yes. And those also are there because that is where their destiny played a role. Or they were able to do the needful. By chance, because of their destiny, they got a person from whom they could learn to handle periods. Sometimes naturally also female does not feel pain, but yes, in maximum cases, I should say 8 out of 10 females have painful periods only, and 9 out of 10 females are facing any kind of problem or hassle related to periods. I think it is 99 into 100, not 9 into 10. Okay. Don't. Okay, 99%, yes, that is actually very sadly but true. It is. But ये किस्मत की बात है. वही मैंने कहा ना, कॉल ऑफ नेचर को हैंडल करना सीख लो. घर में 3 लेडीज हैं, 3 में से किसी एक को पेन होता है, एक का इरेगुलर है साइकिल, या एक को कोई और लेटर ऑन प्रॉब्लम डेवलप हुई है. तो ये एक्चुअली जो एटलीस्ट मैंने सोसाइटी से सुना है, समझा है कि ये किस्मत की बात है. You just have to learn to bear it. No. You just have to learn to live with it. Just I am trying to rephrase this statement. Rather than trying to learn to live with it, learn to handle it. That is the only thing which I am saying. जी. Learn to handle it. Handle call of nature. Okay. So beforehand, I mean, जब हमें पता है कि call of nature आने वाली है. नहीं. Again, the scene is the moment you are born with a daughter, you know that these are the calls which are going to come. Right. So preparation you have to start doing from day one. Mother. Yes, obviously. Okay. इसका मतलब जैसे मैंने ये चीज़ यूरोप में देखी है, जो यूरोपियन कंट्रीज में एक्चुअली फैमिली का इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है, तो मोर और लेस लोगों को पता है कि दे आर बाउंड टू लिव अलोन. कोई साथ होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता. तो एट द एज ऑफ 35, 40 दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर डाइट, अबाउट देयर फिटनेस. हम दे आर एक्चुअली वेरी फिट, दे आर वेरी एक्टिव, दे लिव एन एक्टिव लाइफस्टाइल. I don't think so. I personally saw that. Personally thought that may be possible. But when I traveled across, I found that each and every person is worried. They are running. Every person is running. Each person you find is running. And when I ask them, क्यों भाग रहे हो, तो पता नहीं. They are worried because they want to keep themselves healthy and they want to avoid the aging effects. Because उन्हें ये बात पता है कि अभी हम 40 के हैं, but कल को हम 80 के होंगे. There will be no one around us. तो दे आर प्लानिंग फॉर इट. उनके यहाँ उस तरह के सिस्टम्स बने हुए हैं कि ओल्ड एज में आपका केयर कैसे होगा. आप अभी से अपना टाइम बैंक में डाल सकते हैं, मतलब यू केयर फॉर ओल्ड पीपल नाउ. तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो कुछ लोग आपको आपकी केयर के लिए आ सकते हैं, ऐसा करके. या दे हैव सम काइंड ऑफ सच पेंशन स्कीम्स या हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस. दे हैव द कंप्लीट सिस्टम की ये कॉल ऑफ नेचर तो आनी है जिसे हम एजिंग बोलते हैं. तो दे आर kind of planning for it. Again, you are wrong here. Aging is not a call of nature. Aging is a call of nature. No, it is a call of destiny, not aging. Aging is not a call of nature. Mind it. Aging is a call of nature. No. Call of nature is death, not aging. Aging is your destiny. Aging तो होगी ना. देखिए देखो, ये फिर स्टेटमेंट कहाँ से आई कि एज इज जस्ट ए नंबर? Who has given this statement? ने पॉजिटिव एटीट्यूड को प्रमोट करने के लिए बस लिख दिया कि
इट्स समथिंग लाइक एक सिक्का ऐसे उछालो कि आसमान में छेद हो जाए। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई चीज ठीक है तो उसको तुम मानोगे नहीं, और जो चीज है ही नहीं है उसको तुम लेकर के चल रहे हो। अश्विनी जी, एजिंग तो होती ही है, होती ही है, बट यू कैन मॉडिफाई योर डेस्टिनी। आई सेड एजिंग इज डेस्टिनी, नॉट कॉल ऑफ नेचर। मैं दैट आई एम ट्राइंग टू give you the difference between the two. I am trying to show you the difference between the two. Destiny and call of nature. Call of destiny is aging. Call of nature is death. एक पत्ता है, हाँ। वो पेड़ पर लगा है, टाइम के साथ धीरे धीरे वो पीला होने लगेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ब्राउनिश कलर होगा, वो सूखने लगेगा, उसका पानी सूख जाएगा और वो पेड़ से नीचे गिर जाएगा। Right. This is called a natural process called aging. No, you human being is not a people पेड़ का पत्ता. That is a myth which has been spreading. If it is that. पेड़ का पत्ता गिरता है क्योंकि पेड़ की मजबूरी है, वो उसको पकड़ के नहीं रख सकता, या पत्ते की मजबूरी है कि वो पेड़ के साथ रह नहीं सकता, पत्ते ने अपना ध्यान नहीं रखा. It was totally dependent on others. That is what I say. If you are trying to make yourself dependent on others, you are finished. अगर तुमने ओल्ड एज होम का नाम लिया कि उनको पता है कि they will have to live alone. In the old age home where they are alone, there are so many people around. So get out of this myth कि वो अकेला रहना सीख रहे हैं. No, they are trying to increase their family. You have not understood the concept. They are trying to, the Western culture is that they are trying to increase their family, and Bharatiya Sanskriti says learn to live alone. नहीं, we live in family, we don't live alone. भारतीय संस्कृति है इसकी बच्चा बड़ा हो गया है, इसकी शादी कराओ, शादी हो गई है तो बच्चे क्यों? मेरी जान छूट गई. बच्चे So नहीं, I am alone. आज की तारीख में देख लो कि ओनली कपल्स आर देयर एट होम, बाकी सब छोड़ छाड़ के चले गए. बट वी ऑलवेज वांट कि वांटने से कुछ नहीं होता है, जो हो रहा है वो देखो. बी प्रैक्टिकल. भारतीय संस्कृति हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट लर्न टू लिव अलोन, एंड वेस्टर्न कल्चर इज ट्राइंग टू इंक्रीज देयर फैमिली साइज. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? नहीं, दे डू. अब मैं जितना टाइम यूरोप में थी, I personally saw almost none pregnant lady. European lady, I almost saw none who was pregnant. Because you have not understood the concept of family. If you try to understand the concept of family, then you will realize. Family is husband, wife and their children. No, that is the wrong concept. That is the right concept. No, that is not a right concept at all. परिवार और क्या, कहीं का कुनबा, वो भान, जैसे कहते हैं ना, कहीं का तीर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा. तो वो भारतीय संस्कृति में कहा जाता है. हाँ, तो क्योंकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम संतान, पति पत्नी होते हैं, शादी कराते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे आपस फिर शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ कुनबा. अरे एक बात बताओ मेरे को, आप लोग क्या रोते नहीं रहते हो हर समय कि जनसंख्या बढ़ रही है? हाँ, क्यों रोते हो? हम रोते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, पर इट्स अबाउट दोज पीपल जो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, उन लोगों के लिए कहा जाता है. दैट्स नॉट इम्प्लाई कि मैं अपने बच्चों को कहूंगी कि तुम बस बच्चे पैदा करना, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है. अरे अभी तो बताया कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली. तो फैमिली यही तो है ना. नहीं है ये. फैमिली मीन्स लिविंग टुगेदर, दैट्स इट. फैमिली डजंट मीन के, मतलब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूं, हाँ जी. हाउ डू यू नो द फादर ऑफ द चाइल्ड? मीन्स जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, वो प्रेग्नेंट जो बच्चा आएगा उसका बाप कौन है, वो कौन बताएगा? इसीलिए तो पति पत्नी का कंसेप्ट बनाया गया है ना, कि इस तरह का कंफ्यूजन ना आए. बट डज इट वर्क? यस, इट इज वर्किंग. It is working. Then why so many divorces are going on? The root cause of the divorce is that either female is connected somewhere else or the male is connected. Acha, give me one reason. Why? What is the reason of divorce? They don't get along well. एक ही बात हुई ना. हाँ. फिर
तो ये तो तुम अपने आप का आंख बंद कर रहे, कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली आई है तो वो मेरे को खा जाएगी, और उसने नहीं खाया तो अगर लिव इन ही है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं फैमिली कुछ नहीं है, वो साथ में रह रहे हैं बस, नहीं तो नहीं, मैंने ये क्या कहा, सारा झमेला। फैमिली का मतलब है साथ में रहना। मैंने सिर्फ ये कहा, ये नहीं कहा कि मैंने कहा वो रह रहे हैं या वो रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं। नो। ओके, तो यानी कि कुछ दिनों के लिए अगर हस्बैंड का या वाइफ का टूरिंग जॉब है और वो 2 साल के लिए कहीं बाहर चले गए हैं, तो अब वो फैमिली नहीं है। सोचो, तुम बताओ, बच्चा कैसे हो जाता है फिर? एक जब 2 साल के लिए बाहर गया है तो फीमेल को बच्चा हो जाता है। नहीं, ऐसा सुना गया है ना, यही तो सुना गया है कि तेरा बच्चा कैसे हो गया? तुम्हारा हस्बैंड 2 साल से बाहर है, हाउ डू यू हैव दिस चाइल्ड? ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। पर रोज अखबार में आता है, मतलब हर दूसरे दिन अखबार में होता है ये। इसीलिए तो अखबार में आता है ना, क्योंकि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जनरल नहीं। हर दूसरे दिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने कुनबे में, अपने आसपास आप इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं देखते हैं, हमें नहीं मिलते हैं। हम It's देखना all नहीं about- चाहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम ना एक बेकार के डिस्कशन में जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉल ऑफ नेचर एंड लर्न टू हैंडल इट, नॉट लर्न टू लिव विद इट। तो कॉल ऑफ नेचर एजिंग होती है या नहीं होती है, हम इस पे डिस्कस करें। तो कॉल ऑफ नेचर एजिंग नहीं होती है, कॉल ऑफ डेस्टिनी होती है एजिंग, और कॉल ऑफ नेचर होती है डेथ, तो एक्सीडेंट। हम बूढ़े होते हैं ये क्योंकि हमारी डेस्टिनी है, इसलिए हम बूढ़े होते हैं। मतलब बूढ़ा तुम किसको कह रहे हो, दिखने में या उम्र के हिसाब से? देखिए, उम्र बढ़ती है तो हड्डियों की शक्ति कम होती है। किसने कह दिया? हु सेज? इट्स ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक्चुअली वो ऐसा, मैं बताता हूं ना क्या हुआ है कि माई मदर, शी हैड ए फॉल जस्ट ऑन स्टैंडिंग एंड फॉल, और उसके क्रैक हड्डी में कुछ वो हो गया, चिप हो गई, कुछ तो हुआ, एंड दैट वाज ओनली ए मंथ जॉब टू गेट रिपेयर्ड, रिकवर्ड। बट कंसिडरिंग कि एज है तो वो हड्डियां ब्रिटल हो गई हैं, उनकी हड्डियां ब्रिटल नहीं थी, सॉरी। सो दिस इज अ मिसकंसेप्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉल ऑफ नेचर को हैंडल करना सीखना ही पड़ेगा, और कॉल ऑफ डेस्टिनी को समझ करके उसको मॉडिफाई करवा सकते हो। जी। तो कॉल ऑफ नेचर जी। को हमें हैंडल करना है, और कॉल ऑफ डेस्टिनी को हम हैंडल नहीं कर सकते। कोई एक्सपर्ट हमें गाइड नहीं, हैंडल नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हो। कॉल ऑफ डेस्टिनी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉल ऑफ डेस्टिनी को मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉल ऑफ नेचर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द डिफरेंस। पर कॉल ऑफ नेचर मोर और लेस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कॉल ऑफ नेचर तो पता ही है सबको भाई, सबको पता है क्योंकि वो तो नेचुरल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, वो पता ही है सबको। ओके, और एजिंग में हमारी हड्डियां ब्रिटल होंगी या नहीं होंगी, दैट डिपेंड्स ऑन आवर डेस्टिनी। हड्डियां ब्रिटल नहीं होंगी, बात यहाँ पे हड्डियां ब्रिटल की हो ही नहीं रही है, बात हो रही है एक्सीडेंट की। शी फॉल, दैट वाज द कॉल ऑफ डेस्टिनी। ओके, अगर मुझे पता होता कि ये आने वाली है तो शायद मैं वो होने नहीं देता। ओके, After that, she had to be on bed for 10 years, which I could have reduced it to 2 months. That is what I am trying to say. Mishandling of the call of destiny can cause you suffer for so much of time. This is a practical example I am giving of my mother only. That she suffered for 10 years just because her call of destiny was not known and it was not handled properly. It was not modified. जी। तो जो कॉल ऑफ डेस्टिनी है, ये मान लीजिए आज हमने किसी से रीड कराई, डेस्टिनी रीडर से, और डेस्टिनी रीडर ने हमें बताया कि 5 साल बाद आपके साथ कुछ खराब हो सकता है, या आपके पास तो पैसा अच्छा है, या आपके पास ज़मीन जायदाद अच्छी है, लेकिन देयर इज अ चांस दैट यू विल फेस एन एक्सीडेंट आफ्टर मे बी 5 years। तो अब किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे, वन थिंग। दूसरी बात कि जो छोटे छोटे
ये एक्सीडेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं मामूली सा चोट लग जाना, हम कहीं जा रहे थे तो किसी के हाँ, साथ गाड़ी ठीक बम्प है, हो गया, ठीक। कई बार ये रीडेबल होते हैं, कई बार ये रीडेबल नहीं होते Right. हैं। तो ऐसे एक्सीडेंट्स को भी क्या हम रिवर्ट कर सकते हैं? क्या हम- रिवर्ट नहीं कर रहे हम लोग, सॉरी, हाँ, आई एम नॉट रिवर्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न कॉल ऑफ destiny. I am modifying it. I am not reverting it. I am not changing it. I am just trying to modify it. तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि किसी की एक्सीडेंट होने वाला है और उसके पास हमने देखा कि पैसे भी अच्छे हैं एंड मतलब दैट पर्सन इज क्वाइट रिच Right. एंड एन एक्सीडेंट इज अपकमिंग। Right. दोनों चीजें उसी ने कमाई हैं ठीक है, नेचुरली। राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो अगर वो चाहता है मॉडिफिकेशन, तो देन इज ही रेडी टू पे? पे मीन्स पे, फीस पे इज पे, उसमें फीस भी है, उसमें जो उसको वो एक्सीडेंट का डैमेज कम करना है तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। हर चीज में पैसा, जब उसके पास पैसा है तो वुड ही लाइक टू रिप्लेस सम मनी विद दैट चेंजिंग द मॉडिफाइंग द डेस्टिनी? इसका मतलब तो ये हुआ कि इज ही रेडी टू बाय द डेस्टिनी? नो, ही इज, इफ ही इज बाय रेडी टू मॉडिफाई डेस्टिनी। नहीं, तो आपने कहा ना इज ही रेडी टू पे? हाँ, मॉडिफाइंग द डेस्टिनी, नो? हाँ, तो वी कैन बाय द मॉडिफाइड डेस्टिनी। दैट्स, यू हैव टू बाय ओनली। ओके, तो इसके लिए वी हैव टू गिव सम मनी, वी हैव टू पे सम मनी। You have to buy maybe few things. You have to buy something according to what is the need of the modification. You have to pay the fee. You have to pay the doctor fee. You have to pay the test fee. You have to pay the medicine buying fee. तो देना ही पड़ेगा ना, अच्छा, मतलब खर्चा आएगा, आप ये बोलने की Naturally. ओके, तो इफ दैट पर्सन इज विलिंग टू if he is willing to modify, to what extent he wants to modify, depending on that the expenses will be available involved. ओके, तो अश्विनी जी यहाँ पे एक और क्वेश्चन सीधा सीधा उठता है कि जिनके पास पे करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है या इतने पैसे उन्होंने नहीं कमाए हैं समहाउ, यानी कि दे आर बाउंड टू जस्ट सफर बिकॉज ऑफ देयर डेस्टिनी, यानी कि सिर्फ अमीर लोग ही डेस्टिनी मॉडिफिकेशन खरीद सकते हैं, गरीब लोग नहीं। यहाँ पे अमीर और गरीब का, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो ये कि पैसा कितना लगेगा, ये तो डेस्टिनी मॉडिफिकेशन वाला तब बताएगा ना, जो डेस्टिनी रीड करके जो बता रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। सी हाउ कैन यू, आई मीन यू आर ट्राइंग टू पुट समथिंग विच इज डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली। नहीं, अगर आपने कहा कि इज ही रेडी टू पे, हाँ, ओके, तो उसमें गरीब और अमीर कहां से आएगा? इफ ही इज नॉट रेडी टू पे, ही विल नॉट कम टू द मॉडिफायर ना, ही विल नॉट गो टू द डॉक्टर। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर वो कोई, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है मान लो, और वो गरीब है, उसके पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाएगा जो कम फीस ले। फीस तो देगा ना, हाँ, बस बात खत्म हो गई। तो डेस्टिनी मॉडिफायर आप कह रहे हैं कि हर तरह के अवेलेबल हैं? होंगे ही, होने ही चाहिए, होंगे भी। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि इट इज द डेस्टिनी चेंज जो तुम करना चाहते हो, डेस्टिनी मॉडिफाई जो करना चाहते हो, डेस्टिनी है क्या, इट विल डिपेंड ऑन दैट ओनली। ओके, मतलब द फीस इज गोइंग टू वैरी नेचुरली। लाइक किसी का हेल्थ में डिस्टर्बेंस है तो रेगुलर डिस्टर्बेंस है या एक बार टाइम डिस्टर्बेंस है, कितनी एज का कितना टाइम उसके पास है, टाइम और मनी, टू थिंग्स। आइदर ही हैज टाइम तो ही कैन स्टार्ट डूइंग द प्रोसीजर फ्रॉम अर्लियर, इफ ही डजंट हैव मच टाइम देन ही हैज टू पे मनी, दैट्स इट। so if he has not much time then he has to pay money. I mean I don't get it, क्योंकि अभी तक हमारा जो डिस्कशन हुआ था आपने ये बताया था कि डेस्टिनी मॉडिफिकेशन अल्टीमेटली पर्सन खुद करेगा। हाँ, जितना टाइम है उतने टाइम के हिसाब से वो कुछ प्रैक्टिसेस करेगा जिससे उसकी वो डेस्टिनी मॉडिफाई हो जाए, उसको इतना पेन ना दे। अब अगर टाइम कम है, कम और ज्यादा का तो मतलब ही नहीं है ना कुछ भी। यहाँ पर प्रोसीजर्स हर चीज के बने हुए हैं, अच्छा, कम के भी है, ज्यादा के भी है, बहुत ज्यादा के भी है, बहुत कम के भी है, एवरीथिंग हैज ए प्रोसीजर। ओके, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि जो हम कॉलेज टाइम में बताया करते थे कि एक
एक लॉ के बच्चे को एक बुक दो मोटी सी और उससे पूछो कितने दिन लगाओगे पढ़ने में, तो वो कहेगा 6 महीने। मेडिकल के बच्चे को दो, वो कहेगा 3 महीने। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को दो तो वो कहेगा एग्जाम कब है। तो यू आर प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, कि जितना टाइम है हम उतना लगा देंगे डेस्टिनी की मॉडिफिकेशन में, क्योंकि हम तो इंजीनियर्स हैं। नेचुरली। तो एग्जाम कब है इज द की क्वेश्चन, यही है। ओके, एक और चीज़ जो अभी आपने डिस्कस की कि एंजॉयमेंट को हम एनहेंस कर सकते हैं जी। इसके बारे में अभी तक हमारी बात नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक जो मेरा फोकस था एज अ डेस्टिनी रीडर, और जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, वो हाउ टू रिड्यूस द पेन पर ही ज्यादा आती है। प्रॉब्लम यही है ना कि ज्यादातर 99% जो तुमने बताया फिगर अभी, तो दे आर ऑल इन पेन ओनली। दे डोंट नो व्हाट इज हैप्पीनेस, दे डोंट नो व्हाट इज एंजॉयमेंट। हाँ, लेकिन यस दैट इज ऑल्सो ट्रू कि हर एक हाथ में या हर एक नंबर में, हर एक जोडियक में हमें ये मिलता है कि इस पर्सन के साथ ये ट्रबल रहने वाला है, लेकिन देयर आर सम स्ट्रेंथ्स आल्सो, देयर आर नेचुरली प्लस पॉइंट्स आल्सो। पर लोगों ने कभी आज तक मेरे से कभी किसी ने नहीं पूछा है कि मैं अपने प्लस पॉइंट्स को कैसे एनहांस। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। इफ यू स्टार्ट एनहांसिंग योर प्लस, वैसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब आई एम सरप्राइज कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम अपने प्लस पॉइंट्स को एनहांस करना सीख लो तो तुम्हारी डेस्टिनी के जो रॉन्ग पॉइंट्स है वो तुम्हें ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाएंगे। ये कैसे होगा? यही होता है, यही गेम है, डेस्टिनी मॉडिफायर का यही काम है। तभी मैंने दोनों पॉइंट्स, दोनों डायरेक्शंस को आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू स्टार्ट, और आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू स्टार्ट एनहांसिंग योर हैप्पीनेस, योर डेस्टिनी विच इज गोइंग टू गिव यू ट्रबल्स विल स्टार्ट रिड्यूसिंग पेन्स। जी। तो बहुत लोगों के हाथ में जो मुझे मिलता है वो ये कि हेल्थ तो पुअर है लेकिन मैरिज लाइफ अच्छी है, ऐसा कई बार हमें दिखता है। क्या मैरिज लाइफ, विवाह रेखा जिसे कहते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर मॉडिफाइंग आवर डेस्टिनी? करनी पड़ेगी। अभी जैसे तुमने कहा कि हेल्थ लाइन तो पुअर है और विवाह अच्छा चलेगा जी। तो इसका मतलब ठीक है, रेलवे की पैरेलल लाइन चलती है, मतलब रेलवे ट्रैक तो चलता ही है ना, तो रेलवे की ट्रैक की तरह से लाइन चलती रहेगी। मतलब विवाह को वो अपनी हेल्थ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वही तो मैंने कहा कि मैं ऐसे में ये बताती हूँ कि देखो, आपको मैरिज की तरफ से एंजॉयमेंट रहेगा, आपकी मैरिज आपको सुख देगी, लेकिन हेल्थ में थोड़ा डिस्टर्बेंस बना रहेगा, चुटर पुटर लगातार डिस्टर्बेंस बना रहेगा। अगर आप अपनी इम्यूनिटी पे थोड़ा बहुत काम करते हैं तो नेचुरली थोड़ा सा आपको ठीक रहेगा, बट यू शुड नो दैट योर हेल्थ इज गोइंग टू बी अ डिस्टर्बेंस फॉर यू। तो एंजॉयमेंट नाम का शब्द तो तुमने उस बेचारे को क्या कह दिया तुम लोगों ने, मतलब डेस्टिनी उसको क्या है, एंजॉयमेंट रहेगी बट हेल्थ तेरी खराब रहेगी। भैया वो एंजॉयमेंट तो उसकी तुमने पहले ही खत्म कर दी। देखिए, अगर एक भी देखिए क्या करेगा इसमें, अगर एक भी बता ही रहा है। अगर एक भी नेगेटिव पॉइंट हमें डेस्टिनी में दिखता है, जो कि नॉर्मली दिखता ही है, तो वो बताना हमारा फर्ज है। इसीलिए डेस्टिनी लीडर्स के ऊपर वो चला गया ना, फेथ लोगों को। प्रॉब्लम यही हुई है कि एस्ट्रोलॉजी या ये सारे सिस्टम के ऊपर लोगों का फेथ कैसे खत्म हो गया, कम हो गया। सिंपल रीजन कि उनको पता है कि वो आदमी कह रहा है कि तेरी विवाह अच्छा चलेगा पर हेल्थ में प्रॉब्लम बनी रहेगी। भैया फिर विवाह अच्छा चलने का मतलब क्या हुआ ये तो बता दे, वो नहीं बताया उसने। विवाह का मतलब होता है कि आपका आपके जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, जो मेंटल आपकी बॉन्डिंग है, जो आपका साथ है, वो लंबा चलेगा, स्ट्रेंथेंड रहेगा, मजबूत रहेगा, मजबूर रहेगा। जी। उसे मजबूर कहते हैं या मजबूत कहते हैं, लाइन तो सिर्फ एक ही चीज बता रही है कि अच्छा रहेगा। आप उसको मजबूर कहें या मजबूत कहें। ओके। तो अब इस तरह से हम देख पाते हैं कि डेस्टिनी में एक पेन का कारण है, और ये हमेशा रहता है सबकी में। ऐसे भी लोग आते हैं, ऐसे भी हमने डेस्टिनीज देखी हैं कि पैसा बहुत है लेकिन पैसा रुकेगा नहीं। उनको यही कष्ट है कि उनके हाथ में पैसा रुकता नहीं, जबकि पैसा आ रहा है और जा रहा है, मीन्स यू आर एंजॉइंग द मनी।
you are actually enjoying the luxury of money, but people are not okay with that. हम लोग तो सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं कि ठीक है ये है तो है. तो तुम्हें गलती यही करते हो ना तुम लोग, पढ़ करके छोड़ो मत, उसको डेस्टिनी मॉडिफायर पे भेज दो कि अगर तेरे को ये ठीक करना है तो उसके पास चली जा, तो ये चला जा. पैसा रुक जाएगा. वो तो फिर देखेंगे ना क्या होगा क्या नहीं होगा, किसके पास रुकेगा. ये तो वही बात है ना कि दो बिल्ली एक रोटी के लिए लड़ रही थी तो बंदर को इसमें दो बिल्ली है का, एक ही तो है जो आ रहा है, जो अपनी डेस्टिनी मॉडिफाई कराना चाहता है वही तो आएगा, दूसरी बिल्ली का है. दूसरी उसकी डेस्टिनी, दूसरी बिल्ली उसकी डेस्टिनी है. वो तो खा ही रही है उसको तो रुक ही नहीं सकता उससे. तो उसने सोचा कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं बंदर से कुछ करा लूं, तो बंदर कह रहा है सारी रोटी मुझे दे दे. नहीं, तो वो फिर भी खुश है क्योंकि उसके बाद रहना ही नहीं है, और आएगा जाएगा. जब आना जाने लगा तो दैट पर्सन शुड नॉट, ही इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल, क्योंकि उसको पता है आता जाएगा ही. हाँ, ऐसे ऐसे मैंने हाथ देखे हैं कि पैसा कहीं से भी आए पर अपनी जगह बना ही लेता है. बस तो फिर तो उसको तो टेंशन है ही नहीं ना कुछ भी. ओके. अच्छा, कुछ ऐसे मैंने हाथ देखे हैं जिनकी शुरू से ही किस्मत से ही विवाह रेखा न के बराबर होती है, यानी कि उनकी मैरिज ऐसा लगता है कि या तो होगी नहीं, और होगी भी तो वो उन्हें सुख देने वाली नहीं होगी. ऐसे लोगों को हम बता तो देते हैं कि आपके विवाह आपको सुख नहीं देगा, लेकिन वो फिर भी विवाह जरूर करते हैं. क्या ऐसे लोगों के लिए ये रिकमेंडेबल होता है कि वो विवाह करें? वो तो चॉइस है अपनी, दैट इज ए चॉइस. डेस्टिनी सेइंग दैट विवाह करेगा तो कष्ट होगा. हाँ जी. बस विवाह का मना तो नहीं किया ना डेस्टिनी ने. डेस्टिनी मना किसी चीज के लिए नहीं करती है, क्योंकि हमारी इच्छा वो डेस्टिनी से नहीं पढ़ी जा सकती. वी कैन नॉट हाँ ठीक है, नो द डिजायर्स ऑफ अ पर्सन. it's not required. It is a very bad idea if you start knowing the desire of the other person, then it is going to harm you a lot. वो कभी भी उसकी डेस्टिनी नहीं बताती है कि इसकी इच्छा क्या है. नहीं, वो चाहिए भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. नेवर ट्राई टू रीड द माइंड ऑफ द पर्सन. दैट्स अ वेरी वेरी हार्मफुल प्रोसीजर इफ समबडी इज ट्राइंग टू डू. ओके जी. तो अब आप ऐसे में क्या सजेस्ट करेंगे अगर वो पर्सन आपके पास आया कि जी मेरे को तो शादी करनी है, मैंने तो सारी तैयारी की है कि मकान बनाया इतना बड़ा और मेरे तो बेटे की शादी नहीं होगी तो कैसे चलेगा. अब उसकी तो किस्मत में विवाह है नहीं, या विवाह तो है लेकिन कष्ट देने वाला है, वो मैं मॉडिफाई करा सकता. या डिवोर्स होगा ये गारंटेड है, या कुछ मतलब इस तरह की परेशानी देने वाला हो जाएगा विवाह, ये गारंटेड है. तो आप क्या कर सकते हैं? मैं मॉडिफाई करा दूंगा. तो उसका विवाह भी चलेगा, डिवोर्स भी नहीं होगा, और ठीक ठाक चलेगा. बहुत बढ़िया, शायद ना भी चले पर ठीक ठाक चलेगा, कष्ट नहीं रहेगा. बट पर्सनली मैं हमेशा ये मानती हूँ कि किस्मत से लड़ने में हमें जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, जितना समय लगाना पड़ता है, जितना एफर्ट लगाना पड़ता है, मुझे पता नहीं कि हम किस्मत से लड़ पाते हैं कि नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हमारा बहुत कुछ खर्च हो जाता है जो शायद जिसकी जरूरत नहीं है. वही तो मैंने कहा ना कि खर्च तो पैसे खर्च कर दो ना, खाली बाकी चीजें खर्च करेंगी दोबारा कमा लेना. अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा. एफर्ट तो रहेगा, बट उतना वो जो तुम कह रही हो जिस तरह का एफर्ट, मुझे नहीं पता क्या कह रही हो कि सारे दिन बैठ के हिमालय में बैठ के तपस्या करते रहे तो ब्याह करा के था. तो ऐसा कुछ नहीं है. जो भी एफर्ट्स है घर के अंदर ही है, और ऑफिस में है, अपना काम भी कर सकता है. ईच एंड एवरी रूटीन ही कैन और शी कैन परफॉर्म. अच्छा. हाँ. ओके. जी. अच्छा, एक और ये शायद हमारा अभी तो है हमारे पास समय. संतान किसी किसी की किस्मत में एक्चुअली संतान नहीं होती है. ऐसे लोग विवाह भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि संतान हो जाए, नहीं हो पाने का दुख भी 10 साल झेलते हैं, मैंने देखा है. बट उनकी किस्मत में ही नहीं है तो कैसे होगा. ना वो इस चीज को स्वीकार करते, क्योंकि किसी डेस्टिनी लीडर पर तो विश्वास है ही नहीं, जैसे आप बता रहे हैं. नहीं, मैंने बता रहा लोगों का विश्वास डेस्टिनी लीडर पर कम क्यों हुआ, मैं वो बता रहा. हाँ, मार्केट में ये है कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, पता नहीं 10 लोग 10 बातें बोलते हैं, हम क्यों माने. तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है कि वो विवाह करें पर संतान की अपेक्षा ना रखें, वो तो कोशिश मैं ना करें. देखकर ही बता सकता हूँ ना. मॉडिफाई तो बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूँ ये बात. मतलब बट संतान पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है. संतान नहीं है तो भी पॉसिबिलिटी है कि संतान अगर दोनों की संतान, दोनों की उसमें नहीं है, ओके, ये रेयर है, ये नहीं होगा. दैट्स व्हाट.
और इन एनी केस अगर तुमने मान लो शादी से पहले बता दिया, लड़के को बता दिया कि तेरी किस्मत में संतान नहीं है, तो आई कैन मेक दैट मैच संतान हो जाएगी। आई कैन मेक दैट मैचिंग, लड़की अभी चूज नहीं करी है उसने, और लड़की तो मैचिंग अगर मेरे हिसाब से कर लेगा तो डेफिनेटली संतान हो जाएगी। और लड़की के केस अगर लड़की की किस्मत में नहीं है तो फिर मैं लड़का, फिर उसकी भी मैचिंग में ऐसी करवा सकता हूँ कि संतान उसको हो जाए। अच्छा, दैट पॉसिबिलिटी आई कैन क्रिएट। एक उपाय मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि एक मांगलिक दोष के लिए उपाय एस्ट्रोलॉजर्स कई बार बताते हैं, हालांकि वो मेरा डोमेन नहीं है, कि पेड़ से शादी करा दी जाए। हमारे दौर की बड़ी फेमस अभिनेत्री हैं ऐश्वर्या राय जी, उनके साथ भी कुछ ऐसा कराया गया है, क्योंकि मांगलिक दोष था तो किसी पेड़ से या किसी और से पहले विवाह कराया गया, उसके बाद उनका विवाह किसी मनुष्य से हुआ। डज दीज काइंड ऑफ रेमेडीज वर्क? एंड एग्जैक्टली जो मांगलिक दोष को लेकर सोसाइटी में एक हाइप बना हुआ है, बिकॉज आई डोंट गो फॉर दैट काइंड ऑफ स्टडी, बट क्या आपको लगता है कि मांगलिक दोष नाम का कोई ऐसा बड़ा दोष हो सकता है जो? देखो, मुझे ये बात पता नहीं है, क्योंकि मेरे तो मैं आई एम नॉट ए डेस्टिनी रीडर एनीवेयर, नो, सो दैट आई कांट से, आई डोंट नो व्हाट इज दोष। आई ओनली नो द डेस्टिनी रीडर ने जो बताया है, जिसको भी बताया, उसको मॉडिफाई मैं करवा सकता हूँ। तो पेड़ से शादी कराना भी एक उपाय है? हो सकता है, मेरे सिस्टम में नहीं है। आप नहीं कराते? ना, अच्छा, मतलब किसी और से शादी करा दें फिर? मैं तो कभी भी नहीं करता। तो अश्विनी जी, डेस्टिनी मॉडिफिकेशन के लिए जो रेमेडीज आप यूज कर रहे हैं, जो मैं अब तक समझी हूँ, दे आर प्रिसाइजली बेस्ड ऑन व्हाट? वो किस चीज पर निर्भर करता है? हार्टबीट ऑफ द पर्सन। हार्टबीट ऑफ द पर्सन, यस। तो उस पर्सन की हार्टबीट को आप मॉड्यूलेट कराते हैं या? पहले तो देखते हैं ना क्या कह रही है हार्टबीट, क्या कह रही है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच इज गोइंग टू कम। आप उस कॉज को समझ पाते हैं? नेचुरली, हार्टबीट पढ़ने का मतलब है ना, यही तो है। हार्टबीट का यूज करने का मतलब क्या है? क्या आई एम एबल टू रीड द हार्टबीट एंड आई रीड द मैसेज गिवन बाय हार्टबीट एंड देन आई suggest him some modulations so that he or she is able to modify that. अभी रिसेंटली मैंने एक किसी का हाथ देखा है जिसमें उनका सूर्य अच्छा है, यानी कि उनका करियर अच्छा बनेगा, नौकरी अच्छी लगेगी, या जो भी काम करेंगी उनमें अच्छा पैसा कमाएंगी, अच्छा नाम भी उनका रहेगा, लेकिन ग्रहण है सूर्य पे, यानी कि वो नौकरी उनको कष्ट देने वाली बनी रहेगी हमेशा, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में चले जाए। ठीक है। अब मैं उनको ये तो नहीं कह सकती कि आप नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएं। ऐसे लोगों को डेस्टिनी मॉडिफिकेशन के बाद क्या बेनिफिट होगा कि नौकरी कष्ट देने वाली बनी हुई है? तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ना कि कष्ट किस टाइप का और किस वजह से। जब वो आपके पास आएंगे तो आप पहले कष्ट, हार्टबीट कन्वेज एवरीथिंग। ओके, हार्टबीट कन्वेज एवरीथिंग, so heartbeat will be able to tell me. Okay. तो आप हार्टबीट से ही उनको मॉडिफिकेशन का कुछ? मॉडिफिकेशन इज अगेन मॉड्यूलेशन ऑफ हार्टबीट, दैट्स इट, इन पर्टिकुलर वे। ये मॉड्यूलेशन ऑफ हार्टबीट का क्या मतलब है? कैसे बताऊं? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? इफ यू आर विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? बड़ा सिंपल है कि आईटी को समझो। हाँ जी। आईटी में heartbeat is what? Signal 0101. Right. Heartbeat is clock. Okay. Heartbeat is clock. Okay. And you are modifying it with your program. Okay. So that is called modulation. You are modulating the clock to work in a particular fashion. हाँ जी. That is what is called modulation. हार्टबीट तो मॉड्यूलेट हो ही नहीं सकती। ये तो डेस्टिनी रीडर कह सकता है ना, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं तो करता ही हूँ। नहीं, हार्टबीट कैसे मॉड्यूलेट हो जाएगी? नहीं होगी यार, ये तो डोंट आस्क मी ट्रेड सीक्रेट्स। हार्टबीट इज अ नेचुरल फिनोमेनन। हम हु केयर, वो क्लॉक इज आल्सो नेचुरल, नो? ये भगवान की देन है। तो मैंने कब मना किया? मैं भगवान को कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। I'm not objecting to it. I'm not saying anything. I'm just reading it. एक और प्रश्न यहाँ पे
जो मेरे मन में और आई एम श्योर सभी डेस्टिनी रीडर्स के मन में रहता है, द विल ऑफ सुप्रीम, भगवान की इच्छा। सभी डेस्टिनी रीडर्स, आपने जो पूछा कि वो क्यों नहीं बताते खुल के, साफ क्यों नहीं कहते कि तू मर जाएगा, क्योंकि वो एक फैक्टर छोड़ते हैं, भगवान की इच्छा। ये अपना काम करती है। यस, आई हैव सीन दैट। एग्रीड। कैसे? ये क्या है? वो इच्छा मैं यूज कर लेता हूँ ना। क्या ये हार्ट बीट मॉड्यूलेशन और भगवान की इच्छा, क्या ये सिमिलर चीजें हैं या ये कुछ जो और नया भगवान की ही इच्छा आपने क्या है किया? मुझे पता नहीं, बट मॉड्यूलेशन इज माय गेम। इफ दे आर सेम देन फाइन, आई एम एबल टू मॉडिफाई द इच्छा। ओके, और भगवान की इच्छा ये नहीं है फिर? क्या? एक पर्सन बीमार होने वाला है, आपने उसकी हार्ट बीट को मॉड्यूलेट कराया कि ये अब स्वस्थ है। मैं बीमारी नहीं रोक रहा हूँ, कि सिर्फ कष्ट, बीमारी के कष्ट को कम कर रहा हूँ। हाँ, कि इसको इतना कष्ट ना है कि ये परेशान हो जाए। नहीं, ये भी नहीं मैं कह रहा, वो तो कष्ट कम कर सकता हूँ। कितना कम कर सकता है वो आदमी, वो उसको करना उसको ही है। और अगर ये भगवान की इच्छा नहीं थी तो ये क्या? नहीं होगा। नहीं, भगवान की इच्छा थी बीमार होना, तो बीमार होगा। ये तो कर्मफल था उसका, जो भी जिसको हम डेस्टिनी भगवान की इच्छा ही होगी ना, वो तो डेस्टिनी को तो भगवान कहते हैं। नहीं, द विल ऑफ सुप्रीम इज अनदर थिंग। जो डेस्टिनी रीडर्स हैं वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं। तो वो बस वो फिर ये समझ सकते हैं कि दैट इज मॉडिफिकेशन। दैट इज डेस्टिनी मॉडिफिकेशन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अर्शनी जी की यू आर प्लेइंग विद द विल ऑफ सुप्रीम। Why should I? Why should I? I don't know. Actually, the supreme word is created by you, not by me. Why don't you understand that? Supreme exists and everybody knows that. I am not denying to that, and I am not accepting to that. If it exists, fine. I can't do. जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता तो उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? कर तो रहे हैं आप। क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। Quantification। वो तो इंसान की कर रहा हूँ ना। अरे कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो मैं भी कहता हूँ। आप कैसे हिला लेंगे? मैं तो हिलाता ही नहीं। अगर हार्ट बीट उसको दी है तो मैंने थोड़ी दी है, हार्ट बीट तो किसी और ने दिया ना। हाँ। बस, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो उसी हार्ट बीट को तो मॉड्यूलेट कर रहा हूँ। मॉड्यूलेट तो सभी करते हैं। सभी मीन्स कोई भी। अच्छा, और लोग भी मॉड्यूलेट कर सकते अरे हैं? बताया तो, क्लॉक होती है, उसको प्रोग्राम कोई भी लिख देता है। बूट सेक्टर लिखा, उसका वो बायोस लिखा, उसका बूट सेक्टर लिखा, उसके बाद उसके ऊपर प्रोग्राम लिखा। क्लॉक इज अ ह्यूमन मेड मशीन। नहीं, who says? हाँ, नहीं, तो अरे इट इज अ नेचुरल सिस्टम, भगवान मेड, सो कॉल्ड क्लॉक। हाँ। क्लॉक क्या होती है बताओ मेरे को? डू यू नो क्रिस्टल? हाँ, वी नो क्रिस्टल। भाई आईटी में हो तो क्रिस्टल नहीं सुना होगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, वी नो क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल मींस, क्रिस्टल इज एक स्टोन है या क्रिस्टल? क्रिस्टल इज ए कंपोनेंट। ओके। इट इज ए नेचुरल प्रोडक्ट which is vibrating. ओके। That is the clock. उसको मॉड्यूलेट किया जा सकता है। करते हो ना? बायोस लिखा और फिर उसके बाद वो लिखा, क्या बूट सेक्टर लिखा। बायोस लिखा पहले, उससे मॉडिफाई किया, फिर बूट सेक्टर लिखा, उससे मॉडिफाई किया, फिर उसके ऊपर प्रोग्राम लिखा। ठीक है, तो डेस्टिनी मॉडिफिकेशन पुट टुगेदर इज एक्चुअली पॉसिबल एंड कॉल ऑफ नेचर इज टू बी हैंडल्ड बिकॉज You have to learn to handle rather than learn to live. ओके, कॉल ऑफ नेचर को तो हम टाइम से पहले हैंडल करना सीख सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस वो प्रेडिक्टेबल है। कब आएगी नहीं पता, फिर भी पता है आएगी, अंदाजा आएगी, नहीं रहता पता है आएगी। ठीक है, और वो नॉर्मल टाइम पर आए, ये करना पॉसिबल है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, और वो नॉर्मल टाइम पे है। हाँ, ये हम कर सकते हैं Correct. अगर हम टाइम से प्रिपरेशन करें। एग्जैक्टली। और टाइम से प्रोसीजरल प्रिपरेशन, प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो 100%। उसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकते तुम। और जो कॉल ऑफ डेस्टिनी है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी ऑफ कोर्स, और उसका मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। कितना टाइम बचा है और वो पर्सन कितना पे करने के लिए तैयार है, ये उस पर डिपेंड करता है।
कि वो कितना मॉडिफिकेशन पॉसिबल है उसकी डेस्टिनी में करना। कम जरूर है, जैसे पेन है तो वो अगर कम पे कर सकता है तो डेस्टिनी उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा, पर बहुत कम नहीं होगा। हाँ मतलब वही है कि गोली आपको अगर 2 रुपए वाली गोली से इतना पेन कम होगा और 5 रुपए वाली से इतना कम होगा, 10 रुपए वाली से इतना कम होगा, दैट्स इट। ठीक है। तो अश्विनी जी, डेस्टिनी अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। एंड इट विल टेक अनदर फ्यू सेशंस टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। राइट, आपसे बातचीत करते रहेंगे इसी लाइव के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। प्रणाम। जय शुक्रायु भगवान की जय। जय जय कृष्ण।